Let us pray. Father, we pray that you'll open every eyes of understanding and open every ears of our heart today. प्यारे पिता, हम हर एक के मन को और दिल के आंखों को खोल दीजिए. And I pray that your word, your anointed word will transform our lives. हमारी ये प्रार्थना है कि आपके जो वचन, अभिषिक्त वचन है, हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे. I pray that you will build your church here. हमारी ये प्रार्थना है कि यहाँ पे आप अपनी कलीसिया को बनाएं. I pray that this built people will transform Madhya Pradesh. और ये निर्माण किए हुए लोग जो है मध्य प्रदेश को बदल देंगे. We give you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं. May your name be glorified. केवल आपके ही पवित्र नाम को महिमा मिले. Your kingdom come. आपका राज्य आए. Your people be built. और आपके लोग निर्माण पाए. And Madhya Pradesh be transformed. और मध्य प्रदेश जो है बदल जाए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And everybody said after me. सब मेरे पीछे ये जोर से कहें. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Amen. आमीन. You know, in the beginning, I want to share with you a word God put into my heart one of the days when I was in a nation called Tanzania in the continent of Africa. और अफ्रीका के भूखंड के एक ऐसे राष्ट्र तंजानिया है जहां पर मैं जब था, जब परमेश्वर ने मेरे दिल में जो वचन डाला था, वही वचन मैं आज आपके साथ बताना चाहता हूं. Along with the word of God, I will share a lot of stories from my own life. परमेश्वर के वचन के साथों साथ अनेक ऐसे कहानियां, अपनी जिंदगी की कहानियां मैं आपसे बताऊंगा. Because I want you to relate to me and I want you to believe that if God can use Pastor Srini, He can use you in a better way. और ये बात को मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ रिश्ता बनाए रखें और ये बात को समझ लें कि यदि परमेश्वर पास्टर श्रीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम हर एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. And I believe that God has brought us here for something greater. और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने कोई महान और बेहतरीन बातों के लिए हमारे लिए यहाँ पर लेकर आया है. Bringing you into the word of God, God in His grace and in His calling has taken me to one too many nations to preach the word of the Almighty God. और परमेश्वर ने अपने वचन का प्रचार करने के लिए अनेक ऐसे राष्ट्रों में मुझे ले चला है. And one of the countries was and is Tanzania in Africa. और अफ्रीका में तंजानिया नाम का एक जो राज्य है, राष्ट्र है, वो एक ऐसे राष्ट्र है. I will share how God took me into this country in one of my other sermons, but let me bring you straight to the point this morning time. और अगले बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने इस राज्य में लेकर चला गया. और लेकिन अब जो है परमेश्वर के वचन में आपको लेकर आता हूं. We have worked in Tanzania for over 18 years. लगभग 18 सालों से हम तंजानिया में कार्य किए हैं. God has used us powerfully there. परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य रूप से हमारी इस्तेमाल की. We have trained people, around hundreds and thousands of people into the ministry in this country. सैकड़ों हजारों लोगों को इस राज्य में, राष्ट्र में हमने प्रशिक्षण दिया है. But I was never satisfied. तो भी मैं संतृप्त नहीं था. It was around 4 or 5 years back. लगभग 4 या 5 साल पहले. One of the times around late in the night, I had a God moment in my life. बहुत देरी रात में मेरे अंदर परमेश्वर का एक ऐसा अवसर हुआ. I want to tell you honestly, I was lying on my bed. I wanted to sleep. और मैं ये बात को आपको बताना चाहता हूं, मैं पलंग पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था. But I just could not sleep that night. उस रात को मैं सो नहीं पाया. There was a burden that was gripping my heart. मेरे दिल में ऐसे बोझ जो जकड़ा हुआ था. I struggled to sleep. और सोने के संघर्ष में मैं पड़ा रहा. But because I could not sleep, I went on my knees and I started seeking the Almighty God. और सो नहीं पाया, इसके लिए मैं अपने घुटनों के बल जाकर के परमेश्वर के पास दुहाई देने लगा. There was a deep discontent that came into my heart. मेरे अंदर बहुत ही बड़ी असंतुष्टि आ गई. I was not satisfied with what God was doing. जो कुछ भी परमेश्वर कर रहे थे उन बातों से मैं संतृप्त नहीं था. I was not satisfied with what we were doing. हम जो कर रहे थे इन बातों से मैं संतृप्त नहीं था. Don't think by saying this I am saying that we were a failure in the ministry. We have done great things for God, but I was never satisfied. ये बात को कहने से आपको ये बात नहीं लगना चाहिए कि हमारे सेवकाई में हम पराजित थे, बल्कि परमेश्वर के कार्य में मैं खुद संतृप्त नहीं था. I always don't compare what our performance is to the numbers. I always compare it to the need that is there yet to be reached. और हमारे जो कोई भी सेवकाई है, जितने भी कार्य हम करते आ रहे हैं, उसको आंकड़ों में हम उसका तुलना नहीं करते, बल्कि जो आवश्यकता है उसके साथ हम उसका तुलना करते हैं. I look at the God potential placed within me. और परमेश्वर ने जो क्षमता मुझ पर रखा है, उस क्षमता को मैं देखता
रहता हूँ। When I looked at what we have achieved, when I looked at what has to be achieved, when I looked at what potential God has kept within me, I was deeply dissatisfied. जो बातों को परमेश्वर ने हमारे जरिए जो हमने हासिल किया है, और भी कितनी बातें और भी हासिल किया जाना है, और हमारे अंदर जो बहुत क्षमता, बड़ी क्षमता को परमेश्वर ने रखा है, इसको देखकर मैं असंतुष्ट हो जाता। Because many people came for our training, but post training, I am more interested in what fruit they are bearing. In actuality, there was no fruit that was remaining. और जो है ये जो हम फल लेके आ रहे थे, ये फल में नहीं बल्कि ये असल में जो फल आना चाहिए था, जितना आना चाहिए था, उसके प्रति हम मन लगाए हुए थे। I was not merely interested in my effort. I was not merely interested in a few numbers that we have shared. My heart was to see the real transformation of a nation. और ये जो आंकड़ों में संख्या को देखकर मैं संतुष्ट होना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे राष्ट्र को जो है बदलता हुआ, रूपांतरित होता हुआ, इसे मैं देखना चाहता था। And as I fell on my face before the Almighty God, और जैसे मैं अपने मुंह के बल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने गिर पड़ा, and I bared my heart before the Almighty God. और मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दिया। I pray that you will enter into such moments in your life. प्यारों, मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में ऐसे मौकाओं के पास से होकर गुजरें। I pray we will go through a godly turmoil in our lives. प्यारों, हमारे जीवनों में ऐसे बड़े ईश्वरीय असंतुष्टता से होकर के हम गुजरे। We will not sleep because of worry, but we are unable to sleep because a God moment has gripped our hearts. और ये जो है चिंता के कारण सोना नहीं पाना, ये बात नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य जो है वो पूरा नहीं किया जाने के कारण हमारे अंदर जो तड़प होती है, होते रहना। I am praying that you will not only not eat when you are fasting, but I pray a burden will so grip our hearts that we are unable to eat because we are deeply dissatisfied at what has to be done through our lives. और उपवास करते समय ही केवल भोजन का त्याग करना ही सिर्फ नहीं, बल्कि ऐसे मौका में जहां की जो आवश्यकता अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उसे देखकर असंतुष्टता के कारण आप खाना नहीं, उसको खाने को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मौकाओं में आपको आना होगा। I have traveled to over 13 to 14 African nations. 13 से 14 ऐसे अफ्रीकन के राष्ट्रों में मैंने यात्रा किया है। It is deep in poverty. और वो वहां पे गरीबी की बहुत ही गहराई है। Witchcraft, black magic and sorceries are rampantly available everywhere. वहां पर जादू टोना और हर प्रकार के जादुआ वहां पे कार्य करते हैं। People are in bondage. लोग जो बंधुआई में हैं। It is nothing different to our nation India today. हमारे भारत देश जो वर्तमान में है उससे कई बेहतर नहीं है। And the Lord started speaking into my life. परमेश्वर मेरे दिल में बातें करने लगा। Because one of the things I have developed in my life is not only spirituality but also practicality. मैंने अपने जीवन में केवल आत्मीयता को ही उत्पन्न नहीं किया, बल्कि जो है व्यवहारिक बातों को भी विकसित किया है। I am very practically spiritual and spiritually practical. मैं व्यवहारिक तौर से आत्मिक हूँ, आत्मिक तौर से व्यवहारिक हूँ। So I started seeking the face of God. इसीलिए मैं परमेश्वर के मुख की खोजी हो गया। And I am weeping and crying on my face. मैं अपने मुंह के बल गिर पड़कर रोने, विलाप करने और वहां पे दर्द को व्यक्त करने रहा। I said, Lord, we have worked so many years. और मैंने कहा कि परमेश्वर, हमने इतने सारे साल काम किए हैं। It is not that only Pastor Srini or El Shaddai have worked there. केवल पास्टर श्रीनी और एल शदाई ने वहां पे सेवा की, ऐसे नहीं। There are hundreds and thousands of other servants of God, hundreds and thousands of other ministries that have worked there. और भी अन्य सैकड़ों और हजारों सेवकाएं वहां पर कार्य किए हैं। But when you look at the result that is accomplished, किंतु जो कोई भी बातें हासिल किया हुआ परिणाम को जब मैंने देखा, that breaks our heart. वो हमारे दिल को तोड़ देता है। When you will look at our own nation, जब हमारे खुद के राष्ट्र की ओर देखें, there is such a great population. कितनी बड़ी जनसंख्या है। 2000 years ago, the gospel came to our country. 2000 साल पहले से सुसमाचार हमारे देश में आ For the पहुंचा। last 2000 years, gospel workers have been there in this nation. और लगभग 2000 सालों से सुसमाचार प्रचारक इस देश में होते रहे But हैं। if you look at the percentage of the Christians today in India, किंतु वर्तमान में भारत देश के जो जनसंख्या मसीहों की है, it is very heartbreaking. इसको देखकर हमारा दिल टूट जाता है। But let us go even more specific. Let us come to Madhya Pradesh. और हम स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की ओर नजर घुमाएं। We have come here to look through
through a pipe at Madhya Pradesh. और एक ऐसे पाइप के से होकर के मध्य प्रदेश की ओर देखने के लिए हम आए हैं। For this conference, many pastors wanted to come from different states. और अन्य राज्यों से भी बहुत सारे पास्टर यहाँ पर इस सम्मेलन में आना चाहते थे। I'm telling you with all my honesty that we have refused people to come here for one simple reason: they did not belong to Madhya Pradesh. और वे मध्य प्रदेश के ना होने के कारण हमने उनको पूरे वफादारी से इनकार किया है, ये बात को मैं कहना चाहता हूँ। Everything that we have done here is specific to the state of Madhya Pradesh. जो कुछ भी यहाँ पर किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश के लिए विशिष्ट रूप से ये बहुत ही खास है। Because we believe that the history of Madhya Pradesh has to change. क्योंकि हमारी ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश के इतिहास बदलना चाहिए। We do not want to have another conference and go back. We have many conferences. We praise God for every conference. एक सम्मेलन को पूरा करके हम चले जाना नहीं चाहते। ऐसे अनेक ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो ये सम्मेलनों के लिए। Madhya Pradesh has a population of 7.3 crores. और 7.3 करोड़ की जो है आबादी मध्य प्रदेश में है। 52 districts of Madhya Pradesh. 52 जिला है मध्य प्रदेश में। 369 blocks. और 369 ऐसे ब्लॉक है। 55,429 villages. 55,429 गांव देहात है। But if you look at the Christian population here, किंतु यहाँ के मसीही आबादी को देखेंगे it is 0.29%. तो 0.929% है। You should pardon my mathematics. It has been very difficult for me from the time I am a child. बचपन से लेकर के मेरे लिए गणित बहुत ही कठिन हुआ है, इसीलिए आप मेरे गणित की क्षमा कीजिएगा। If I have to believe the 2.9%, और वो जो 0.29% के पर विश्वास करना है, in that 7 crore plus people, that means practically they are a little over 2 lakh Christians in the entire state of Madhya Pradesh. 7.3 जो करोड़ लोगों की जो आबादी के बीच में ये जो मसीही लोग 2,19,000 लोग ही हैं। Now there are 752 people groups. और यहाँ पर जो है 752 ऐसे लोग समूह हैं। There are 705 unreached people groups. अपहुंचित लोगों के समूह जो है 705 ऐसे हैं। God has not brought you only for your sake here. प्यारों, परमेश्वर ने केवल आपके कारण यहाँ पे आपको नहीं ले आया। You may be in a village, my pastor. हे मेरे पास्टर जी, आप जो है गांव देहात में होंगे। Don't limit the God in the inside of you today. आपके भीतर में जो परमेश्वर है उसे परिसीमित ना करके रखो। God's eyes have been searching all over Madhya Pradesh. You know why? God has loved Madhya Pradesh. God has died. The Lord Jesus had died for Madhya Pradesh, and God is interested in bringing Madhya Pradesh into the salvation of the Lord Jesus Christ. और देखिए प्यारों, परमेश्वर जो है मध्य प्रदेश से इतना प्यार करते हैं। मसीह यीशु जो मध्य प्रदेश के लिए अपना जान दे दिया, वो मारा गया, और यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति जो है उसके राज्य के वारिस हो जाए। I pray that God will open your eyes to the reality today. Yeah. प्यारों, मेरी ये प्रार्थना है कि आज में परमेश्वर आपके आंखों को खोल दे कि वर्तमान में होने वाली वास्तविकता को आप देखने पाएं। I pray after the 4 days when you and I walk out of these doors, there will be a new hope for Madhya Pradesh, and the history of Madhya Pradesh will be rewritten by the body of Christ in Madhya Pradesh. और आपके जरिए जो कार्य होगा उसके कारण बहुत बड़ी आशा यहाँ पे प्रकट हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की इतिहास बदल के फिर से नए रूप से लिखा जाएगा। जो विश्वास कर रहे हैं मेरे पीछे जोर से बोलिए हालेलुया। फिर से बोलेंगे हालेलुया। You know, God has brought you and I here. देखिए प्यारो, परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। Not for a mere revival, but I will assure you, you will go from here revived. और केवल एक बहुत बड़े बेदारी के लिए नहीं, परमेश्वर आपको बेदारी देकर ही भेजेगा, ये जरूर है। God did not bring you only to be healed of your back pain, but let me assure you, God will heal you here. और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पीठ के दर्द को चंगा करेगा, वही केवल नहीं। But God has brought you
you for a greater purpose here. देखिए प्यारो परमेश्वर आपको यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हैं, एक विशेष और महान ऐसे उद्देश्य है। I believe God is going to raise up an army here. God is going to build a particular tribe here which will go out and change what has not happened in the last 2000 years must happen in our generation. देखिए प्यारो परमेश्वर एक बहुत बड़ी सेना को खड़ा करना चाहते हैं, एक ऐसे नए कुल को और गोत्र को तैयार करना चाहते हैं जो कि 2000 सालों से नहीं हो पाया, वो इन दिनों में इसी पीढ़ी के द्वारा ये होने वाली है। ऐसे बड़े नए गोत्र को परमेश्वर तैयार करना चाहते हैं। I would encourage you, stop looking at yourself, stop looking at your church. Let us start looking at Madhya Pradesh. Let us start looking at the 55,000 villages. Let us start looking at the 8 crore people that are there without Christ or without a church in the state of Madhya Pradesh. देखिए प्यारो अपने आप को देखते रहना बंद कीजिए, आपके खुद के कलीसिया को देखते रहना बंद कीजिए। अभी मध्य प्रदेश में जो 55,000 से अधिक जो गांव देहात है उसकी ओर नजर घुमाइए, और यहाँ के जो 8 करोड़ जो लोग हैं उनके और अपने नजर घुमाइए। And as I was in Tanzania with this deep discontent in my life, और इतने बड़े असंतुष्टता के साथ जब मैं तंजानिया में था, because I am very big on data, I am very big on statistics, I count people because people count to God. और ये संख्या या आंकड़े जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये लोग जो है परमेश्वर के सामने मायना रखते हैं, इसीलिए बातों को मैं बताना चाहता हूं। And I am interested in not only bearing fruit, I am interested in bearing fruit that will remain in the kingdom of God. और मैं केवल फल लाना ही मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो फल जो लाता हूं वो परमेश्वर के राज्य में बना रहने का मैं दिलचस्पी रखता हूं। When you look at India as a whole, और जब हम पूरे भारतवर्ष को देखेंगे, when you look at Madhya Pradesh as a state, और मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में देखेंगे, we must understand one thing very clearly. मुझे और हमें एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, that it is not that attempts have not been made earlier. उसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले कोई परिश्रम या कोई ऐसे कार्य नहीं हुआ है। Many people have attempted and we praise God, we honor the people who have gone ahead of us. और जो लोग हमसे पहले हो गुजरे हैं उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। We honor them, but the reality doesn't escape our eyes. और उनका हम सम्मानित करते हैं, किंतु वास्तविकता हमारे नजरों से हट नहीं जाता। I don't want to simply point a finger at them, I am including myself in them. और मैं उन लोगों की ओर अपने उंगली उठाकर बताना नहीं चाहता, बल्कि जब उंगली उठाता हूं उसमें मैं खुद अपने आप को शामिल कर देता हूं। Our sincere attempts, our very zealous attempts have not borne the fruit that God would have desired. और हमारे वफादारी से, सच्चाई से जो सेवा कार्य हमने की है, हमने जो भी बातों को जो है पूरे जोश के साथ हमने कार्य करने की कोशिश की, बल्कि उतना फल को हम देख नहीं पाए। When you look into the Old Testament, जब आप पुराने नियम की ओर देखते हैं, God raised up a deliverer, God raised up a leader called Moses. परमेश्वर ने एक ऐसे बड़े छुटकारा दाता को परमेश्वर ने खड़ा किया, एक नेता को, उसका नाम मूसा था। And God said, Moses, take the people out of Israel into the promised land. परमेश्वर ने मूसा से कहा है, मूसा अपने लोगों को जो है मिस्र देश में से वो वायदा किया हुए देश में ले चल। And Moses was successful in bringing them out. और मूसा जो है उनको बाहर ले जाने में सफल हो गया था। I want you to understand the context of that day and let us see how it is relevant to you and to me today. और उस दिन की जो संदर्भ की और मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो जो बात आज वर्तमान में कैसे ये लागू किया जा सकता है उसकी ओर भी हमें देखना आवश्यक है। All of us are pastors here. यहाँ पे बैठे हुए हम सभी पास्टर हैं। With the little knowledge that we have of the Bible, we understand that the entire Israel under the leadership of Moses made a sincere attempt to enter into the promised land, but they failed. और थोड़ा बहुत ज्ञान जो परमेश्वर के वचन के प्रति है उसके द्वारा हम ये बात को समझ सकते हैं कि इजराइल के सारे लोग जो है मूसा के नेतृत्व में वो आगे बढ़ तो गए, किंतु वहां पे पूरे सफल नहीं हो पाए। They could not enter into the promised land. प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश कर नहीं पाए। When you look at India as a whole today, आज वर्तमान में जैसे भारत
भारत देश को पूरा देखोगे, you look at any state of India today, आज वर्तमान में जो हर एक राज्य को देखोगे भारत में, it is not that we have failed in attempting. We have attempted and attempted, but what we have failed is get the result what God has promised in the word of God for you and I. और ये ऐसा नहीं कि हमने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई बातों को हासिल करने की कोशिश नहीं की, ये बात नहीं, बल्कि हमने इतने सारे परिश्रम करने के बावजूद, हमने हासिल करने के बावजूद परमेश्वर ने जो फल या नतीजा रखा है उसको हमने पूरा प्राप्त नहीं किया है। After 2000 years, the church of the Lord Jesus Christ in this nation of India has managed to merely survive. और लगभग 2000 सालों के पश्चात इस बड़े राष्ट्र में, भारत देश में, परमेश्वर के जो राज्य यानी परमेश्वर की जो कलीसिया है बहुत धीमी गति से आगे बढ़ चुकी है। केवल रहना, अपना गुजारा करना ही वो हो चुका है। Moses failed and the entire generation died in the wilderness. मूसा नाकामयाबी हो गया और पूरे जो पीढ़ी उसी मरुभूमि में वो नाश हो गए। And the Bible says God raised up a new generation. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी को खड़ा किया। God raised up a new leader. परमेश्वर ने एक नए जो अगुवा को खड़ा किया। Because it was a beginning of a new dispensation of the Almighty God. क्योंकि परमेश्वर के युग के एक नई शुरुआत थी। Now I want you to understand, contextually you and I are almost in that particular point of our lives. और ये बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप और हम जो है उसी क्षेत्र में हैं जो कि संदर्भ के द्वारा देखा जाए। Now an entire new generation, एक नई पीढ़ी है, a new leader, एक नया अगुवा है, a new dispensation. और एक नए युग शुरू Now हुई है। Joshua and the entire Israel, और यहोशू और सारे इजराइल के लोग हैं, they are at the threshold of the promised land. और वे जो प्रतिज्ञा किए हुए देश को प्राप्त करने पर है, They are one step away from the destiny of God. परमेश्वर की नियति से एक कदम पीछे हैं। But if you look behind, what is there, the legacy they have inherited? और उन्होंने जो उत्तरदायित्व को पाया है उसको अगर मुड़कर देखें, Amazing miracles, बहुत अद्भुत कार्य हुए pillar हैं। of cloud and pillar of fire. और मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ था। If you will only gauge it by the number of miracles and the visitations of God, double thumbs up, they have done well. और यदि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्यों को देखकर अगर आप उसको अनुमान लगाएंगे, हम 2 बार thumbs up कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो भी अद्भुत कार्य किए हैं बहुत बड़े बड़े कार्य थे। But yet they have not entered into the promised land. ये सारे बातों को देखने के बावजूद वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं When किए। God raised up a new leader and a new generation, जब परमेश्वर ने एक नए अगुवा और नए पीढ़ी को खड़ा किया, and I believe this is what God is speaking into your lives today. मैं यकीन करता हूं आज परमेश्वर आपके दिल में यही बातों को कहते हैं। Because there have been failed attempts behind us. और बहुत सारे हमने ऐसे बातों को हम नाकामी हो गए हैं। We not only want to work, but we want to transform the entire state of Madhya Pradesh. हमारे सेवा कार्य करते रहना, क्रिया करते रहना ही सिर्फ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के राज्य जो है रूपांतरित होकर देखना हमारा लक्ष्य है। When Joshua and the entire Israel were at the promise of the threshold of the promised land, यहोशू और इजराइल के सारे प्रजा जो है वो उस वाचा के देश के एकदम ही करीब आ चुके थे। they cross a river, they enter into the destiny of God. केवल एक ही नदी को पार करना बाकी था जिसके द्वारा परमेश्वर के नियति में वो प्रवेश करने And पाएंगे। here I am praying, God, I am not merely interested in working for you. I am interested in working where the fruit of the body of Christ must change a state, must transform an entire nation. प्यारों, मेरा सेवा कार्य का लक्ष्य यह है कि मैं इस बात में नहीं, बल्कि जो है पूरे जो राज्य को बदलने वाले और पूरे जो देश को बदलने का, जो नियति को बदलने वाले ऐसे लोग हम हो जाएं। The Lord spoke to me what God spoke to Joshua. यहोशू से परमेश्वर ने जो बातों को बोला था वही बातें परमेश्वर ने मुझसे भी बोला। And I believe that is the word God speaking to every pastor here and to the body of Christ in Madhya Pradesh. मेरा यही विश्वास है कि हर एक पास्टर जो यहाँ पर बैठे हैं और मध्य प्रदेश में परमेश्वर यीशु मसीह का देह है, उससे जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं वो यही बात है। In chapter 3 of the book of Joshua, यहोशू का 3 अध्याय में
I will bring you to the straight to the verse here. सीधा उस वचन की ओर आपको ले चलना चाहता Because हूँ, we understand the context here. यहाँ के संदर्भ को हम समझ लेते हैं। And there is one phrase I want to pick up here. यहाँ पर एक ऐसे बयान या वाक्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ, But he said, God is speaking to Joshua. और परमेश्वर यहोशू से बोल रहे हैं। He says, there will be a space between you and the Ark of Covenant, about 2,000 cubits by measure. Don't come very near it, that you may know the way by which you must go, because you have not gone this way before. परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। These words jumped into my spirit. The Lord spoke to me, Srini. I told Joshua to prepare himself to walk away he has never walked before. और ये जो पद है मेरे आंखों के सामने कूद उठा, और परमेश्वर मुझसे बोलने लगे। यहोशू से मैंने बोला, वही बात को श्रीनी मैं तुमसे बोलना चाहता हूं, वो जो मार्ग से अब तक होकर नहीं चले, उसी मार्ग से तुम्हें भी मैं ले जाना चाहता हूं। When you look behind, there is an attempt, but the attempt has failed. But if you do not want to fail in your attempt, you want to fulfill what God has called and ordained you for, you must prepare yourself to walk away you have never walked before. पीछे मुड़कर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कोशिशें थी, वो कोशिशें जो है वो जीत की ओर नहीं बल्कि हार की ओर चल पड़ी, क्योंकि परमेश्वर अब कहता है मैं तुम्हें उस मार्ग से लेकर चलूंगा जहां पर तुमने अब कभी इससे पहले नहीं चले। I believe God is speaking to every pastor here. यहाँ पर बैठे हुए हर एक पास्टर से परमेश्वर बातें कर रहा है, ये मेरी विश्वास है। God is not calling you and I to walk away which we already have walked. हम पहले से जो चल कर आए हैं उस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर हमें नहीं आह्वान देता God है। is not calling you and I to walk the same path that our forefathers walked. हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग से होकर चल पड़े हैं उसी मार्ग पे चलकर आने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता But नहीं if है। you and I are serious of changing Madhya Pradesh, if you and I are serious of transforming Madhya Pradesh, we need to get ready. We need to prepare ourselves to walk away. Nobody has ever walked before. यदि आप मध्य प्रदेश को बदलते हुए देखने में आप गंभीर हैं और पूरे भारत देश को बदलते हुए देखने में आप गंभीर हैं, तो उस मार्ग से होकर के चलना है जहां पर किसी ने इससे पहले नहीं चल पड़ा है। And the Lord started challenging me in my life, and I want to give you the same challenge this morning time. और परमेश्वर ने जो चुनौती मुझे दी उसी चुनौती को मैं आज सुबह के समय में आपके सामने रखना चाहता हूं। When I look at our ministry, जब हमारी सेवकाई की ओर मैं देखता from हूं, the time God spoke this thing to me, और जब से लेकर परमेश्वर ने ये बात मुझसे बोली, we are involved in church planting. हम जो कलीसिया रोपण में लगे हुए हैं, Now we see a drastic change in how we are doing the ministry. और अभी जो हम सेवकाई करते आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं। Earlier we were planting churches, one here, one there, one here, one there. और पहले जो है हम यहाँ पर एक कलीसिया वहां पर एक कलीसिया करके हम एक एक करके हम रोपण करते जा रहे But I am थे, not satisfied with that. किंतु उस बात में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। One day a mission organization invited me to preach for them. और एक बार जो एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे उनके यहाँ पर प्रचार करने के लिए बुलाया, They worked in that particular state for over 37 years. और 37 वर्षों से वो उस राज्य में उन्होंने कार्य किया था। There are more than 50,000 villages in that state. और उस राज्य में 50,000 से अधिक ऐसे गांव देहात In the हैं। 37 years they have planted over 3,500 churches. और ये जो 37 सालों में उन्होंने 3,500 कलीसियाएं उन्होंने रोपण की, I saluted them. और मैंने उनका सलामी की, I looked at their ministry. उनकी सेवकाई की ओर I looked देखा, at their sacrificial lives. उनके त्याग भरे जीवन की ओर मैंने But देखा, I went back to my room और and जब मैं अपने कमरे में चल पड़ा I asked the Lord, और मैंने परमेश्वर से पूछा, do you want me to wait for another 37 years for another 3,500 churches? और 3,500 कलीसियाएं रोपण किया जाने के लिए क्या और भी 37 साल में मुझे प्रतीक्षा करनी होगी? No. Somewhere the mathematics is not matching here. कहीं तो ये गणित नहीं जुड़ रहा है। God is not calling you to do what your father did. God is not calling you to do what your senior pastor Moses did. God is calling you to walk away you have never walked before. If you and I will walk that way, I challenge you on behalf of God.
Madhya Pradesh will never be the same again. और परमेश्वर आपके पिता जिस मार्ग से होकर गए उस मार्ग पर चलने को नहीं, आपके जो मुख्य पास्टर जो मूसा थे वे जिस मार्ग से होकर चल पड़े उस मार्ग से नहीं, बल्कि मैं ये चुनौती आपको देना चाहता हूं, जिस मार्ग से वो सारे लोग चलकर नहीं गए उस मार्ग से आप जाने को तैयार हो जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश अब जैसा है वैसा नहीं रहेगा। It broke our heart in one district of Madhya Pradesh. We could not even find one single pastor. और जब हमने ये बात को देखा कि एक जिला में एक भी पास्टर नहीं था तब हमारा दिल टूट गया। But I pray that through you people today, किंतु मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों के द्वारा आज that Madhya Pradesh will be an absolutely evangelized. Madhya Pradesh will never have even a single village without multiple churches of the Lord Jesus Christ. और मेरा ये प्रार्थना है आप हर एक के जरिए मध्य प्रदेश में एक भी ऐसे जिला नहीं होगा, एक भी ऐसे गांव नहीं होगा जहां पर अनेक कलीसियाएं नहीं हैं। When the Lord spoke to me, Srini, get ready to walk away. You have never walked before. I jumped onto my feet. और जैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बातें की, श्रीनी जिस मार्ग से तुम अभी तक नहीं चल कर गए उसमें चलने को तैयार हो जाओ, तब मैं अपने पैर के बल खड़े हो गया। I am walking a particular way how to pastor a church, but now I am going to walk that way of pastoring a church like I have never walked before. और अभी तक मैं इस तरीके से चलता आ रहा था कि कैसे मैं कोई कलीसिया का पासबान बना रहा हूं, बल्कि अब से लेकर मैं उस रास्ते से चलूंगा जहां पर अभी तक मैं चल नहीं पड़ा कि कैसे मैं बड़ा पास्टर बन सकता हूं। I am involved in church planting. और कलीसिया रोपण में मैं लगा हूं। And that has taken me through a path. और वो जो है मुझे एक रास्ते से होकर ले चलाया But है। today God is telling me, किंतु आज परमेश्वर मुझसे कहते हैं, I want you to walk away you have never walked before. तुम उस मार्ग से होकर चलो जिसमें अब तक तुम कभी नहीं चले हैं। And you are not going to do what you did earlier. You are going to do something exceeding, abundantly more that you have ever asked or even imagined. अभी तक आप जो कल करते आ रहे थे उसके अनुसार आप करते नहीं रहेंगे, बल्कि इससे पहले जो अभी तक नहीं किया गया था ऐसे जो सोचने से और हमारे प्रार्थना करने से ज्यादा, बहुत ज्यादा हमसे होगा। God is calling you, my pastor. God is calling you, my brother, to walk away you have never walked before. हे मेरे पास्टर, हे मेरे प्रिय भाई, आपको परमेश्वर आज इस बुलाहट में बुला रहा है कि अब तक जो मार्ग से तुम होकर नहीं गए उस मार्ग से होकर चलने को तैयार हो जाओ। Can I hear a loud amen? क्या आप आमीन बोलोगे जोर से? Amen. I believe the body of Christ in Madhya Pradesh being prepared by God to walk away you have never walked before. और मध्य प्रदेश में जो प्रभु यीशु मसीह का देह है वो इसकी तैयारी में होकर जा रहा है, जो कि उस मार्ग से होकर चले जो कि इससे पहले कभी नहीं चल पड़े हैं। When I heard this and I changed the strategy of church planting. जब मैंने ये बात को सुनकर अपने कलीसिया रोपण की रणनीति को मैंने जब बदल दिया। In 5 to 6 years in this nation of Tanzania, we as a ministry directly and indirectly, we have been used by God to plant more than 800 churches today. 5 से 6 साल जो है ये तंजानिया के राष्ट्र में हम प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में हम जो है 800 से ज्यादा कलीसियाओं को रोपण करने के लिए परमेश्वर ने हमारी इस्तेमाल की है। Hallelujah. हालेलुया। And I believe it will happen here. मैं विश्वास करता हूं वही बात यहां पर भी होगा। मध्य प्रदेश में होगा। It will happen in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होगा। It will happen in मध्य प्रदेश। 55,000 villages में कलीसिया रोपण होंगे। Amen. And in 55,000 villages the churches will be planted. Hallelujah. Hallelujah. But for you to walk to walk the path that you have never walked. और उस मार्ग से होकर जब कभी नहीं गए उस मार्ग से चलने के लिए In 1 Corinthians chapter 2 verse 9 the Bible says, पहला कुरिन्थियों का 2:9 में पवित्र शास्त्र कहता है, Eye has not seen neither the ears have heard. किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना,
And nobody has even understood the great and the precious things what God has prepared for them that love God and for them who are called according to His purpose. और ना किसी के चित्त में ये बात उत्पन्न हुई जो बातों को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया, जो उनसे प्रेम करते उसके बुलाहट के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। I want to tell you, pastors, हे पास्टर, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, saluting to all what you have done till now. अभी तक जो कोई कार्य आपने किए उसकी बधाई देते हुए, Saluting all the members that are there in your church. आपके कलीसिया में जितने भी जब लोग हैं उन सारे लोगों के लिए बधाई देते हुए, There is still an unseen and there is still unheard and there is still undone. और अभी तक ना देखा हुआ, ना सुना हुआ और ना किया हुआ, ऐसे बहुत कुछ है। And God is preparing you to see the unseen, hear the unheard, to do the undone. और परमेश्वर आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप उस बात को देखें जो अभी तक देखा नहीं गया था, उस बात को सुने जो अभी तक सुना नहीं गया था, और उस बात को करें जो अभी तक किया नहीं गया था। I believe these sessions God will add a brick upon brick. मेरा ये विश्वास है कि ये जो सत्रों में परमेश्वर ईंट के ऊपर ईंट लगाएगा। And we, all the servants of God will share not only our stars but also our scars on our body. और हर एक जो परमेश्वर के जन यहाँ पर आकर जो बोलने वाले हैं वे केवल अपने ऊंचे बातों को ही केवल नहीं, जीत की बातों को ही केवल नहीं, अपने हार और पराजय और घावों को भी वो बताएंगे। I want you to go from here believing if God can use Srini, God will use me better. मैं चाहता हूं कि आप जब यहां से निकल कर जाएंगे तो इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यदि श्रीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे और बेहतरीन तौर से मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। Get ready to walk away you have never walked before. अब तक जिस मार्ग से होकर तुम नहीं चले उस मार्ग से चलने को तैयार हो जाओ। Get ready to see the unseen. जो बातों को देखा नहीं, अनदेखी को देखने के लिए तैयार हो जाओ। Get ready to hear the unheard. अनसुनी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। Because God is preparing you to do the undone. क्योंकि परमेश्वर उस बात को जो करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं जो कि अब इससे पहले कभी नहीं किया गया था। So if you're wondering why God brought you here, यदि आप इस सोच में पड़े हैं कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर क्यों ले आया, He brought you to walk away you have never walked before. उसने इसीलिए लाया कि तुम उस मार्ग से होकर चलो इससे पहले जो कभी नहीं चले हैं। And this path will take you to fulfillment. और यही मार्ग जो आपको परिपूर्णता में ले चलेगा। You are very precious to God, servant of God. प्यारे परमेश्वर के सेवक, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो। You may be defeated today, maybe you are depressed today. हो सकता है आज आप पराजित है या आज आप निराश है। You have struggling in your life today. आज हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े संघर्ष में पड़े हैं। But I want to prophesy over you. किंतु आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी कहना चाहता हूं। Out of that broken, despondent, depressed, unfruitful life, God will raise up a great army in Madhya Pradesh. और वो जो टूटा हुआ, निराश, हताश ऐसे जिंदगी से परमेश्वर इसी मध्य प्रदेश में आपके जरिए बहुत बड़े सेना को खड़ा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। If you're ready to walk away, you have never walked before. अब तक जो मार्ग से होकर नहीं चले उस मार्ग पर चलने को यदि आप तैयार हैं तो, Because when you cross the other side are hundreds and thousands of churches. उस पार जब आप चले जाओगे तो वहां पर सैकड़ों हजारों कलीसियाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? Let us stand up in the presence of the Lord. आइए प्यारो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Amen. आमीन। God told Joshua, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, get ready to walk away you have never walked before. इससे पहले कभी नहीं होकर गए उस मार्ग पर से होकर चलने के लिए तैयार हो जाओ। God is calling you for greater things. परमेश्वर आपको भी बहुत बड़े बड़े बातों के लिए बुला रहे हैं। God is calling you to finish the unfinished. जो पूरा नहीं किया गया था, तय नहीं हुआ था, उन बातों को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं। What is there in this journey? How we are going to do it? We will see it in these 4 days. हमारी ये यात्रा में क्या है और ये मार्ग को हम कैसे पूरा करेंगे, ये जो बात को हम आने वाले 4 दिनों में हम देखने वाले हैं। I challenge you today.
आज के दिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। God has caught hold of you. परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है। Hundreds of people are fasting and praying for you as we are here in this auditorium. इस ऑडिटोरियम में जैसे हम खड़े हैं, हमारे लिए सैकड़ों लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। Just give these 4 days to Jesus. और ये जो 4 दिन प्रभु यीशु के हवाले कर दो। You will not be the same. आप अब जैसे वैसे नहीं रहोगे। Your church will never be the same. आपकी कलीसिया आप जैसी है वैसे नहीं रहेगी। Madhya Pradesh will never be the same. और ना मध्य प्रदेश अब जैसा है वैसा कभी नहीं रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thousands upon thousands new churches will be planted in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में ही हजारों हजारों कलीसियाएं रोपण किए जाएंगे। Through you people. आप लोगों के जरिए। Every eye be closed, हर please. एक आंखें बंद हो जाएं। I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। You want to cry for yourself? Do it quickly. यदि आप अपने खुद के लिए रोना चाहते हैं, जल्दी से करिए। आंसू बहाना चाहते हैं तो आप अपने लिए आंसू बहाएं। I want you to shift your attention. मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान को आप बदल दें। I want you to look at that almost 8 crore people of Madhya Pradesh. मैं चाहता हूं कि आप अपने दृष्टि को 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ जो मध्य प्रदेश के लोग समूह है या तो आबादी है उसकी ओर अपने नजर घुमाएं। I want your attention to that 55,429 villages, please. और आपके जो ध्यान को 55,229 ऐसे गांव देहातों की ओर अपने नजर घुमा कर देखें। If Joshua the leader had not decided to walk away, he had not walked, Israel had no chance. यदि यहोशू एक नेता होकर के उस मार्ग पर जो कभी उससे पहले नहीं चला था वहां पर चलने को तैयार नहीं होता तो इज़राइल को और कोई मौका नहीं होता। I want to tell you, you are the hope of Madhya Pradesh. प्यारों, मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र आशा आप ही है। You are the hope of Madhya Pradesh. आप ही मध्य प्रदेश की आशा है। Your church is the hope for Madhya Pradesh. आपकी कलीसिया जो है वो मध्य प्रदेश की आशा है। Don't be bothered, I am uneducated, I have no money. Please don't be bothered about them. इसकी परवाह ना करें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरे पास पैसा नहीं, इसकी परवाह ना करें। Don't even be bothered about your defeated life. और आपके जो जीवन में नाकामयाबी को भी देखकर आप परवाह ना करें। God will take care of all of that. ये सारे बातों को परमेश्वर देख लेगा। But let us begin by saying, God, I am ready to walk away. I have never walked before. किंतु ये बात को कहकर हम शुरू करें कि प्रभु जी उस मार्ग पर से होकर जाने को मैं तैयार हूं जिस मार्ग पर इससे पहले मैं कभी नहीं चल पड़ा। Thank God for all the ministry you have done till today. आज तक आपने जितने भी सेवकाई किए हैं वो उन सारी सेवकाओं के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। But God has greater things. किंतु परमेश्वर को और भी महान और श्रेष्ठ बातें बाकी है। And if you say, yes, Pastor Srini, I am ready. यदि आप ऐसे कहेंगे कि हाँ पास्टर श्रीनी मैं तैयार हूं, Just lift up both your hands, pastors. ऐसे कहने वाले आपके दोनों हाथों को उठाइए पास्टर। Let God hear the cry of your heart today. देखिए परमेश्वर आपके दिल के करार को सुनने पाए। Tell him, God, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर I am ready to walk away. I have never walked मैं before. उस मार्ग से होकर चलने को तैयार हूं जो मार्ग में अभी तक नहीं चला। I am willing to walk for the sake of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के हेतु मैं चलने को तैयार हूं प्रभु जी। I am willing to walk for the sake of the 55,429 villages, Lord. 55,429 गांव देहातों के हेतु मैं इस मार्ग से चलने को तैयार हूं। I will walk away. I have never walked before because you are with me. प्रभु जी आप मेरे संग होने के नाते मैं उस मार्ग से होकर चलूंगा जो कि अब तक मैं नहीं चला। Holy Spirit, I pray that you will take control of every person here. हे पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उन हर एक व्यक्ति का नियंत्रण पाए। Let a new hope rise in Madhya Pradesh, Lord.
प्रभु जी, मध्य प्रदेश में एक नई आशा और उम्मीद जाग उठे। Break our hearts, we pray. हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे दिल को तोड़ दे परमेश्वर। Let us catch your vision. Let us catch your burden, we pray. हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर की हम आपके दर्शन को और आपके बोझ को हम अपना लें, उसे प्राप्त कर लें। But to begin with, से शुरू करने के लिए we are ready to walk away. We have never walked before. उस मार्ग पर चलने को हम तैयार हैं जिस मार्ग में हमने कभी नहीं चला इससे पहले। Father, in the name of the Lord Jesus, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से I pray for every precious servant of God gathered here. हर एक बहुमूल्य परमेश्वर के जन जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए प्रार्थना करता हूं मैं। I pray for the state of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। God, we pray that as we spend these 4 days together, हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर कि जैसे हम ये 4 दिन मिलकर के यहाँ पर गुजारा करेंगे, we will see the unseen. हम वो बात को देखेंगे जिसे अभी तक हमने देखा नहीं था। We will hear the unheard. उन बातों को सुनेंगे जिसे अभी तक हमने सुना नहीं था। We will walk away we have never walked before. और उस मार्ग पर होकर चलेंगे जिस मार्ग पर इससे पहले कभी नहीं चल पड़ा। We will do the undone in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में अभी तक जो कार्य पूरा नहीं हुआ, किया नहीं गया था, उस कार्य को हम करेंगे प्रभु जी। We thank you for this wonderful day. आज ये सुंदर अद्भुत दिन के लिए हम धन्यवाद Let देना the चाहते हैं। presence and the conviction of the Holy Spirit grip all our hearts, we pray. परमेश्वर का पवित्र आत्मा के उपस्थिति हमारे बीच में होकर के हर एक दिल को निरुत्तर कर ले प्रभु जी। We give you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के धन्य नाम से मांगते And हैं। everybody who is ready to walk away, you have never walked before. और जिस मार्ग पर आप कभी इससे पहले नहीं चले, उस मार्ग पर होकर चलने के लिए जो कोई भी तैयार है, Such people say an amen after me. ऐसे लोग मेरे बाद में आमीन कहे। Amen. Amen. आमीन, Amen. आमीन। जोर से ताली बजा के हम प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। जोर से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।